विकास का वादा कर चला है रीप किसानों को लेकर। चारों तरफ हो हरियाली, घर घर लाए वो खुशहाली। दुनिया भर में विश्वास जीत आधुनिकता का है ये प्रतीक। विकास का वादा कर चला है रीप किसानों को लेकर। रीप दुनिया भर में किसानों को विकास के पथ पर लिए चले जा रहा है। नमस्ते हमारा विक्रेता बंधु, किसान दोस्तों और हमारे इंडस्ट्री का लीड। मेरा नाम जॉय तिलक देव है। मैं मार्केटिंग हेड हूँ सल्फर मिल्स लिमिटेड ग्रुप के। आज हम हमारा नया प्रोडक्ट लॉन्च शुरू करने जा रहे हैं और आज अभी तक सब जुट चुके हैं। ये प्रोडक्ट लॉन्च से पहले हम लोग 2 प्रोडक्ट लॉन्च किए थे। एक था टेक्नोजेट और दूसरा था जिंदा। और हम आभारी है आपके कि वो 2 सक्सेसफुल ब्रांड आप लोग ने बनाए हैं। अब हमारा 6 प्रोडक्ट लॉन्च होने जा रहे हैं, जिसके बारे में हम लोग विस्तार में बात करेंगे। तो अभी हम शुरू करने जा रहे हैं। धन्यवाद। राम राम, माझं नाव सुकेतू दोशी आहे। सल्फर मिल आणि सुमिलचे मी डायरेक्टर आहे। आपण आपल्या सल्फर मिल आणि सुमिलचे विक्रेता बंधूच्या विशाल परिवार जे 80 देशमध्ये आहे, त्याच्यात आपला एक मुख्य इम्पॉर्टंट महाराष्ट्राचा भाग। आपल्याला सर्वांना माझा नमस्कार आणि प्रणाम। आपण इकडे भेटतो 3 नवीन प्रोडक्ट लॉन्च करायसाठी। सामान्य समयमध्ये आपण संघात हॉलमध्ये कार्यक्रम करतो, भेटतो, जेवण करतो, चर्चा करतो, पण आज अनफॉर्च्युनेटली हा आपण करू शकत नाही। आपण सर्व नेहमी सल्फर मिल आणि सुमिलचे सर्व प्रोडक्टला प्रोत्साहन दिलेलं आहे, त्याचा सपोर्ट फुल केलेला आहे आणि मला आशा आहे आणि माझी खात्री आहे की पुढे पण तुम्ही नवीन प्रोडक्ट आणि आमचे सर्व रेंज त्यावर कंटिन्यूअस सपोर्ट आणि प्रोत्साहन करेल। फायनली मी हेच म्हणेल की आपल्या हे कोविडचे विचित्र समयामध्ये तुमचे सर्वांचे परिवार, तुम्ही स्वतः आणि तुमची फ्रेंड मित्र मंडळी सगळे निरोगी, सुरक्षित आणि सेफ राहो। नमस्कार, धन्यवाद। Dear friends, my name is Veerabhadram. I am CEO of Sulfur Group of Companies, Sulfur Mills, Sumil Chemicals and Arthur Crop Care. I am talking to you through video because of the COVID problem prevailing in the country today, and I am sure all of you are staying healthy and safe at your homes. You are aware that Sulfur Mills is pioneer in introducing very high technology formulations. You are aware of Fertis and Cosamel introduced long ago, the WDG formulations of sulfur. Then a couple of years back, you know that we have introduced the advanced formulation of zinc in the name of Technojet and Jinda. You are aware this product has done fantastically in the field, and the results are to be seen everywhere in various demonstrations. And also you will be glad to know that the zinc content in the output after using Technojet and Jinda has gone up substantially. Nowadays you hear people talking about taking zinc nutrient for immunity boosting in human beings. So in the same line of thought process, we are glad to announce we are introducing 3 more products in Sulfur Mills and 3 more products in Sumil to boost up our product range and also to help and the overall agriculture gets benefited. The products that are coming under Sulfur Mill are Java Super, Bultan and Scorpio. Java Super and Scorpio are insecticides, and Bultan is a fungicide of WDG formulation. Similarly, in Sumil, we are introducing Pyrofen, an insecticide, and Fusion, another combination insecticides, and Vantage, WDG formulation of fungicide.
So Sulfur Mills is sort of coming up with 3 products in each of the categories of brands to help the improve our range of products and to help the dealer community to serve the farmer better. We are sure you will support us even with these product launches, and we apologize for the sort of e-launch. Normally, we do a lot of big meetings and then launch products, but unfortunately because of COVID situation we have to change ourselves and use digital means, and therefore this is our attempt to e-launch 3 products, 2 insecticides and 1 fungicide in sulfur and 2 insecticide and 1 fungicide in Sumil through the e-launch program. Once again, thank you very much for your attention, and we wish you and your families and your associates stay safe, stay healthy, and come over the COVID situation in the country. Jai Hind. नमस्कार, सल्फर मिल की तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत है। और आज हम 2 प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं। हम काफी समय से बात कर रहे हैं कि सल्फर मिल नया प्रोडक्ट ला रहा है, लेकिन मार्केट बंद था, कोविड की वजह से हम मूव नहीं कर पा रहे हैं और होटल में लॉन्च करना मुश्किल है। उसके लिए अभी हम जूम से या तो डिजिटल से लॉन्च करने जा रहा है। तो 2 प्रोडक्ट है अभी आज, एक है बुल्टन और दूसरा है स्कॉर्पियो। तो पहले हम एक प्रोडक्ट के बारे में बात करें, बुल्टन। बुल्टन है, उसमें जो थायोफिनाक मेथड टेक्निकल है, जो WDG फॉर्मुलेशन में बनाया गया है। अभी तक जो भी भारतीय मार्केट में दूसरी कंपनी या तो हम खुद भी जो बेच रहे थे वो WP फॉर्मुलेशन बेच रहे थे। WP फॉर्मुलेशन का काफी लिमिटेशंस है, उसका पार्टिकल साइज बड़ा होता है, इसकी वजह से डोज ज्यादा देना पड़ता है और रिजल्ट भी कम मिलता है। WDG टेक्नोलॉजी में पार्टिकल साइज बहुत फाइन रहता है, 2 to 4 माइक्रोन का रहता है और उसकी वजह से उसका डोज और रिजल्ट्स में काफी फायदा रहता है। इसके अलावा इसमें नया जो हमने ऐड किया हुआ इस प्रोडक्ट में वो रेन फास्टनेस टेक्नोलॉजी, यानी WDG के साथ साथ और जो हमने उसमें एडिशन किया हुआ इस प्रोडक्ट में जो नया टेक्नोलॉजी ऐड किया हुआ है वो रेन फास्टनेस, यानी स्प्रे करने के बाद दवाई आपकी फंजीसाइड जो है वो एकदम पत्ते पे जल्दी से चिपक जाएगी और बारिश के दिनों में खास करके उसका फायदा मिलेगा। दवाई वॉश आउट नहीं हो जाएगी और 1 आध घंटे का अगर खुला मिल गया तो 100% रिजल्ट मिलेगा उसका। ये एक दूसरा फायदा है उसका। पार्टिकल साइज आगे बताया जैसे 2 to 4 माइक्रोन, यानी बहुत ही बारीक पार्टिकल साइज है। दूसरा ये WDG होने की वजह से पानी में जब भी हम मिलाए स्प्रे करने के टाइम पे टैंक मिक्स करें तो इमीडिएटली वो डिस्पर्स हो जाता है खुद ब खुद और यूनिफॉर्म सॉल्यूशन बन जाता है और वो सेटल नहीं होता है। और 2 to 4 माइक्रोन साइज की वजह से और अंदर रेन फास्टनेस टेक्नोलॉजी की वजह से वो बेटर कवरेज देता है, पत्ते के ऊपर यूनिफॉर्म कवरेज मिलता है और चिपक जाता है। इसकी वजह से उसका लंबा रिजल्ट मिलता है और सुपर बेसिकली अच्छा रिजल्ट मिलता है और लंबे समय तक रिजल्ट मिलता रहता है किसान को और बारिश से धुलता नहीं, वो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर दिया है। दूसरा जो उसका फायदा है एनवायरमेंटल एंगल से या तो सेफ्टी के एंगल से बात करें तो डस्ट फ्री है, क्योंकि WP में डस्ट रहती है, वो डस्ट उड़ती है, मिक्सिंग करते समय पे उड़ती है
और ट्रांसपोर्ट में कहीं पे कहीं गिरती रहती है डस्ट, लेकिन WDG टेक्नोलॉजी की वजह से वो डस्ट फ्री रहता है। दूसरा, उसको वॉल्यूमेट्रिक इजी है, यानी आप मेजर करते हैं, जब नापना होता है उसको पंप में डालते समय तो वो बहुत इजी है, क्योंकि डस्ट को नापना मुश्किल होता है, लेकिन WDG को मापना, उसके मेजर कप से मापना इजी होता है। इजी टू स्टोर, कहीं भी लगा हो तो उसको स्टोर करना आसान होता है, कहीं भी गिरेगा नहीं और उसका फैलेगा नहीं। दूसरा, डस्ट में काफी ऊपर जो बॉक्स खाली रखना पड़ता है, लेकिन ये WDG में ऊपर ज्यादा कोई खाली बॉक्स रखने की जरूरत नहीं है, तो एक उसी जगह में हम ज्यादा दवाई स्टोर कर सकते हैं। और मेन जो किसान का फायदा है वो कॉस्ट इफेक्टिवनेस, यानी वो ऑलमोस्ट वही खर्च में उसको बेटर प्रोडक्ट मिलता है, बेटर रिजल्ट मिल रहा है और लंबा समय तक रिजल्ट मिल रहा है, कॉस्ट इफेक्टिवनेस है। तो बुल्टोन है वो कॉस्ट इफेक्टिव नए जनरेशन का फंजीसाइड है, नया फॉर्मुलेशन है, बेसिकली नोवेल पेटेंटेड फॉर्मुलेशन है जो प्रोटेक्टिव, क्यूरेटिव, इरेडिकेट टाइप का काम करेगा और वेराइटीज ऑफ फंगस पे काम करता है। ये मल्टीपल फंगस पे काम करता है, ये एक दूसरा फायदा है। एक्सेलेंट रेंज फास्टनेस, यानी ऑलरेडी डिस्कस कर लिया हमने कि स्प्रे करने के बाद वो जल्दी धुलता नहीं है, बारिश में भी धुलेगा नहीं और अपने आप मिल जाता है। जब आप मिक्स करें टैंक में तो वो टैंक और में ऑटोमेटिकली अपने आप मिल जाता है, ज्यादा उसको डंडे से हिलाने की या मिक्स करने के लिए जो एफर्ट लगता है वो करने की जरूरत नहीं। एक बार मिक्स हो गया तो बाद में उसमें एजिटेशन या बार बार मिलाने की जरूरत नहीं पड़ती, ये एक दूसरा उसका बड़ा फायदा है। काफी वेराइटीज ऑफ फंगस पे काम करता है, उसका जो डोज है वो 300 से 400 ग्राम पर प्रति एकड़ है नॉर्मल क्रॉप्स में। अगर हॉर्टिकल्चर क्रॉप से, ग्रेप जैसे क्रॉप है तो उसमें 400 से 500 ग्राम जाएगा। सॉइल एप्लीकेशन भी उसका कर सकते हैं, जो सॉइल बोर्न डिजीज को कंट्रोल करने के लिए, तो उसमें 500 ग्राम से 1 किलो तक जाएगा। वो आप साथ यूरिया के साथ मिला के या तो सैंड के साथ, रेत के साथ मिला के या मिट्टी के साथ मिला के या ड्रिप से दे सकते हैं, ये एक उसका और फायदा है। अब जो हमारा उस प्रोडक्ट को कौन है हमारा रियल में ये प्रोडक्ट का कौन हमारा कस्टमर है, जो प्रोग्रेसिव फार्मर्स जो नोवेल फॉर्मुलेशन चाहते हैं, सेफ्टी चाहते हैं और हमेशा नई टेक्नोलॉजी के साथ चलना चाहते हैं, वो किसान वो हमारा कस्टमर है ये प्रोडक्ट के लिए। यूनिक सेलिंग पॉइंट जो ये प्रोडक्ट का है, तो प्रोटेक्टिव एंड क्यूरेटिव, इरेडिकेटिव, ये ट्रिपल एक्शन जो है फंगस को कंट्रोल करने के एंगल से, एक्सेलेंट टैंक्स मिक्स पार्टनर और सबसे ज्यादा है कॉस्ट इफेक्टिव। इतना अच्छा नोवेल फॉर्मुलेशन पेटेंटेड प्रोडक्ट होने के बावजूद उसका कॉस्ट जो है वो हमने किसान को जेब को भरना पड़े इस टाइप का रखा हुआ है। तो इसको हम दो तरीके से मेनली यूज कर सकते हैं। एक तो हम उसको स्प्रे करने के बाद फोलियर डिजीज मैनेजमेंट के लिए यूज कर सकते हैं, दूसरा है सॉइल एप्लीकेशन के लिए, सॉइल बोर्न डिजीज कंट्रोल करने के लिए, जो ऑलरेडी हमने बात किया। तो ये बुल्टोन के बारे में हमने बताया। ओके, नमस्कार किसान बंधु, आप सबका सल्फरमिल लिमिटेड की तरफ से हार्दिक स्वागत है। और आज हम एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहा है। हम काफी समय से बात कर रहे थे कि सल्फरमिल में काफी नया प्रोडक्ट आने वाला है, तो आज हम 2 प्रोडक्ट लॉन्च करना चाह रहे हैं। उसमें से एक प्रोडक्ट के बारे में हमने ऑलरेडी बता दिया और दूसरा प्रोडक्ट जो हमारा स्कॉर्पियो है, स्कॉर्पियो के बारे में जानने से पहले हम उसका एक छोटा सा वीडियो देख लेते हैं।
स्कॉर्पियो एक मिक्स फॉर्मुलेशन है बेसिकली, नोवेल प्रोडक्ट है, नया फॉर्मुलेशन, जेडसी फॉर्मुलेशन है। बहुत कम कंपनी के पास इस टाइप का फॉर्मुलेशन है। इसमें एक तो खास करके जो बनाया गया है, जो आज देखते हैं बीटी कॉटन या तो कोई भी मल्टीपल क्रॉप देखो, सोयाबीन है, ग्राउंडनट है, हमारा जो भी क्रॉप है, कॉटन है, तो उसमें मल्टीपल इंसेक्ट्स आते हैं अलग अलग समय पे। एक तो इल्ली टाइप के और दूसरा एक चूसक कीड़े, यानी चूस के खाने वाले और काट के खाने वाले, 2 प्रकार के कीड़े आते रहते हैं। तो चूस के खाने वाले कीड़े के लिए एक मॉलिक्यूल है जो उस पर काम करेगा, और दूसरा थ्रिप्स जो रियल में चूस के खाने वाला कीड़ा नहीं है, वो स्क्रैचिंग करता है, जो अंदर से पत्ते में से पानी निकलता है उसको पीता रहता है, और जहां स्क्रैचिंग किया वो पार्ट ड्राई हो जाता है, वो पत्ते का पार्ट ड्राई हो जाता है और सूखने लगता है, एक तरफ मुड़ने लगता है। तो उसके लिए सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड ज्यादा काम नहीं करती है। तो उसके लिए कॉन्टैक्ट एंड सिस्टेमिक डबल एक्शन इंसेक्टिसाइड हो तो वो बेटर रिजल्ट दे सकता है। तो उसके एक पार्टनर जो इसमें लैम्बडा है जो 9.5%, वो इल्ली के लिए, और खास करके बीटी कॉटन में जो आजकल वेस्टर्न इंडिया में थ्रिप्स का बड़ा इश्यू है, तो उसके लिए वो बेटर काम करेगा। तो कॉटन की फसल अगर लेते हैं तो शुरू में एफिड जैसी थ्रिप्स रहेगा, तो उसके लिए ये प्रोडक्ट एक बहुत ही अच्छा रहेगा। तो इसके जो हम लेबल क्लेम में जो हमारे पास क्रॉप है वो कॉटन है, सोयाबीन है, मक्का है, चिली यानी हमारी मिर्ची है, मूंगफली है, चाय है, टोमेटो है। इतने फसल पे हमारा लेबल क्लेम है, तो हम उसको बेच सकते हैं। 1 एकड़ का जो उसका डोज है वो 80 से 100 ml का डोज है, यानी डोज बहुत कम है, कम डोज है। इसकी वजह से पर एकड़ खर्च जो आएगा वो एक नॉर्मल आएगा, और मल्टीपल इंसेक्ट को कवर कर रहा है। तो इसको आगे देखते हैं। सोयाबीन की बात करें, सोयाबीन में उसका डोज मेरे ख्याल से जनरली 20 से 25 दिन की अवस्था, जहां गडल बीटल का स्टार्टिंग का टाइम होता है, उसका अंडा देने का, उसकी मादा का अंडा देने का टाइम जो होता है, उस समय पे हम अगर उसका स्प्रे करें 80 ml प्रति एकड़ के हिसाब से, तो गडल बीटल और छोटे मोटे चूसक कीड़े जो उस समय होते हैं, या तो लीफ ईटर होते हैं, ग्रीन जो लीफ ईटर टाइप के कुछ इल्ली होती है, उसको भी कंट्रोल करेगा। तो बेसिकली ये एक गुड स्टार्ट है। सोयाबीन में मेन इश्यू गडल का रहता है, और इसमें पहले जो प्रोडक्ट 1-2 चलती थी वो अभी ऑलरेडी मार्केट में नहीं है, बैन हो चुकी है। तो उसके लिए गडल बीटल के लिए प्रोडक्ट एक अच्छा प्रोडक्ट के लिए किसान भी सोचते रहते हैं और ढूंढ रहे थे कौन सा एक अच्छा प्रोडक्ट है। तो मेरे ख्याल से ये स्कॉर्पियो है उस सेगमेंट के लिए बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट साबित होगा। और पिछले कुछ साल से सोयाबीन में सकिंग पेस्ट का इश्यू भी, चूसक कीड़े का इश्यू भी बहुत बढ़ रहा है, तो उसके लिए ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा रहेगा, डबल एक्शन काम करेगा। वैल्यू फॉर मनी, यानी जो वो इन्वेस्ट करेगा उसका पूरा उसको मनी का रिटर्न मिलेगा। और उस समय पे खास करके 20 से 25 दिन के समय पे ज्यादातर किसान लोग सोयाबीन में हर्बिसाइड का यूज करते हैं। तो काफी एरिया में ट्रेंड है कि हर्बिसाइड का जो यूज करते हैं उसी समय पे टैंक मिक्स में वो इंसेक्टिसाइड भी लगाते हैं गडल बीटल के लिए। तो इसमें ये अच्छा टैंक मिक्स हो सकता है। दूसरा जो हमारा फसल है वो कॉटन है। हम जानते हैं कि बीटी कॉटन आने के बाद जो उसमें बॉलवर्म या तो इल्ली का प्रकोप थोड़ा कम हुआ है, उसके स्प्रे कम हो चुके हैं, लेकिन सकिंग पेस्ट के जो नंबर ऑफ स्प्रे है वो काफी बढ़ गए हैं जो पहले की कंपैरिजन में। और मेन जो नया इंसेक्ट उभर के बाहर आया है वो थ्रिप्स है। थ्रिप्स के लिए प्रोडक्ट बहुत अच्छा साबित होगा। अभी हम हमारा जो हमारी प्रोडक्ट रेंज में से चैलेंजर या तो मस्टांग है वो लोग यूज कर रहे हैं, लेकिन ये मल्टीपल पेस्ट के लिए प्रोडक्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। 80 ml प्रति एकड़ के हिसाब से वो करीब करीब आप 35 से लेके 50 दिन के अंदर के जो अवस्था होती है उस समय खास करके एफिड, जैसिड, थ्रिप्स तीनों होते हैं। तो उसके लिए ये तीनों को कंट्रोल करने के लिए ये प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा होगा। और इसके अलावा मेरे ख्याल से इसमें साथ में और कुछ मिलाने की जरूरत नहीं पड़ी, अकेला ही तीनों सकिंग पेस्ट को, तीनों कीड़े को कवर करेगा। और ग्रीनरी आएगी इसमें। खास ये है कि ये प्रोडक्ट का जो फॉर्मुलेशन नॉवेल बनाया गया है और खास करके, तो उसमें जैसे स्प्रे करने के बाद फसल में हरा परापन आता है। एक तो चूसक कीड़े का जो लॉसेस होता है फूड का वो बंद हो जाता है, इसलिए ग्रोथ भी मिलता है और फसल बहुत हरा भरा दिखता है। तीसरा जो इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट है वो हमारा चिली है। खास करके एमपी का एरिया चिली का निमाड़ में है, रतलाम में भी है, उधर अकोला रीजन में कुछ है, और गुजरात में भी चिली का कुछ पॉकेट्स है। तो चिली में खास करके
तीन चार जो हमारे मेन कीड़े आते हैं, एक तो जैसिड होता है, कभी कभी बारिश के दिनों में हल्का सा एफिड भी कहीं कहीं आ जाता है, और इसके अलावा तीसरा जो मेन कीड़ा रहता है थ्रिप्स, जो लीफ कट डिजीज लाता है, उसका जो कैरियर का काम करता है, और वो है थ्रिप्स। इसके अलावा फ्लावरिंग स्टेज पे कभी कभी छोटे मोटे फ्रूट ईटर, फ्रूट को नुकसान करने वाले इल्ली, या तो पत्ते खाने वाले इल्ली, या स्पॉट पत्ता लश्करी इल्ली बोलते हैं कई जगह पे उसको, तम्बाकू के पत्ते खाने वाले इल्ली भी होती है। तो इसके छोटी अवस्था के लिए भी ये काफी अच्छा काम करेगी ये प्रोडक्ट। तो चूसक कीड़े, थ्रिप्स और छोटी मोटी इल्ली जो पत्ते खाती है शुरू की अवस्था में, यानी आप करीब करीब फ्लावरिंग स्टेज से 40 दिन के बाद से लेकर करीब 70 डेज के स्टेज में हम उसको 2 बार स्प्रे कर सकते हैं कम से कम। वो भी 80 से 100 ml का डोज नॉर्मल रहेगा। अगर छोटी अवस्था है फ्लावरिंग स्टेज के आसपास की तो 80 ml काम करेगा। 70 डेज यानी अबोव का स्टेज है, फ्रूट स्टार्ट हो चुका है, हाइट ज्यादा है फसल की, तो 100 ml तक जा सकते हैं। एकदम स्प्रे करने के बाद कुछ ही दिनों में एकदम ग्रीन और हरा भरा फ्रेश लस ग्रीन पत्ते दिखेंगे। पूरा पेस्ट जो हमारा है तकलीफ वो दूर हो जाएगी, और फ्लावरिंग और फ्रूट सेटिंग में ज्यादा अच्छा सेटिंग मिलेगा। तीसरा जो हमारा फसल है ग्राउंडनट, खास करके गुजरात है, राजस्थान का पार्ट है, उसमें बड़ा एरिया ग्राउंडनट का। और ग्राउंडनट में भी शुरू की अवस्था में जैसे 27-28 दिन में पीले फूल शुरू हो जाते हैं, वो फूल की अवस्था से लेके उसी समय पे मेन तो खास एफिड का आता है, ब्लैक एफिड, जो ग्राउंडनट का अलग एफिड है, एफिस आता है। साथ साथ में थ्रिप्स का प्रकोप भी बीटी कॉटन के साथ, जहां कॉटन के आसपास में ग्राउंडनट लगती है वहां थ्रिप्स होती है कॉटन में भी। इसके अलावा खास करके लश्करी इल्ली जो आती है वो जुलाई 15 से लेके अगस्त 15 के आसपास के स्टेज में आती है। तो ये पेस्ट के लिए खास करके 80 ml प्रति एकड़ पहला राउंड है 25 से 30 दिन की अवस्था में, और जरूरत पड़े तो आप दूसरा राउंड उसके 15 से 20 दिन बाद दोबारा लगा सकते हैं, क्योंकि ग्राउंडनट में भी अभी कई जगह पे 4 से 5 राउंड लगते हैं। इसको भी हम 25 से 30 दिन की अवस्था में, जो ग्राउंडनट में हर्बिसाइड यूज होती है कई जगह पे, काफी जगह पे पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड यूज होती है, इमिजा है या तो फिर ग्रासीसाइड है जो लगती है, तो उसके साथ में इनको मिला के भी लगा सकते हैं, ताकि हमारे जो सकिंग पेस्ट और खास करके एफिड जैसिड और थ्रिप्स अच्छी तरह से कंट्रोल हो जाए। चौथा जो हमारा बाद वाला फसल है वो मेज है। मेज का एरिया काफी ज्यादातर अभी तक जो मेज था वो ट्राइबल एरिया में यानी आदिवासी एरिया में ग्रो होता था, लेकिन पिछले कुछ साल से मक्का का जो एरिया है कॉमर्शियल कल्टीवेशन बहुत अच्छे एरिया में होने लगा है। एमपी की बात करें या गुजरात की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, तो मेज का बड़ा एरिया है। उसमें भी पिछले कुछ साल से 2-3 कीड़े का प्रकोप बढ़ा है। उसमें मेन जो पुराना कीड़ा तो स्टेम बोरर था, जो सूट फ्लाई था, और पिछले 2 साल से फॉल आर्मी वर्म का प्रकोप बढ़ा है। उसको मैनेज करना मुश्किल है, और उसके लिए टाइम में अटैक आने के बाद या अटैक आने का वेट नहीं करना, एक उसका टाइम है ताकि उसी समय पे कीड़ा आता ही आता है, तो टाइम में प्रोटेक्टिव और पहले से स्प्रे करें तो मेरे ख्याल से उसका काफी हद तक हम अच्छी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। तो स्टेम बोरर को कंट्रोल करने के लिए 80 ml प्रति एकड़ के हिसाब से 15 से 20 दिन के स्टेज में जब स्प्रे करें तो नोजल को खास करके हाइट पे रखना है, और उस जो पौधे का हॉल है, जो फनल टाइप का शेप होता है, उसमें अंदर दबाया जाए तो वो बेटर है, क्योंकि जो स्टेम बोरर वहीं रहता है और उसके कांटेक्ट में आता है, वहीं से वो अच्छा कंट्रोल होता है। तो ये मक्का के लिए भी बहुत अच्छा प्रोडक्ट साबित होगा। तो ये पूरे फसल जो भी हमने बात की वो सब फसल का एक समरी टाइप का दे, तो उसमें सब कॉटन है तो कॉटन में एफिड है, जैसिड है, थ्रिप्स है और इल्ली है या बोलवर्म है, जो उसको 100 ml प्रति एकड़ के हिसाब से डोज लगाने से काम होगा हमारा। जैसे मक्का में एफिड है, शूट बोरर, स्टेम बोरर और फॉल आर्मीवर्म, उसको 80 ml से का डोज है। ग्राउंडनट में एफिड जैसे लीफ ईटिंग कैटरपिलर छोटे मोटे जो आते हैं शुरू की अवस्था में, उसके लिए भी 80 ml का डोज है। सोयाबीन में स्टेम फ्लाई, सेमीलूपर, गडल बिटल खास है 20 से 25 दिन की अवस्था में, खास करके 20 से 22 दिन की अवस्था में गडल बिटल का अंडा देने का टाइम होता है। वो समय खास अगर किसी ने संभाल लिया तो जीत गया, अगर उससे लेट हो गया तो फिर वो पहली पेटी नुकसान करना था वो कर देगी, करना होता है वो कर देगी। तो उसमें 80 ml का डोज है। सिमिलरली चिली में थ्रिप्स और फ्रूट बोरर के लिए 80 ml। चाय का कल्टीवेशन हमारे वेस्ट इंडिया में, वेस्टर्न जोन में यानी एमपी,
गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ में नहीं होता है, लेकिन उधर वेस्ट बंगाल और दार्जिलिंग साइड उधर जहाँ होता है, तो वहां के लिए वो चाय की थ्रिप्स होती है और सेमी लूपर, टी मॉस्किटो बग, उसके लिए 80 ml। टोमेटो में भी थ्रिप्स, व्हाइट फ्लाई, फ्रूट बोरर के लिए 80 ml का डोज है। तो इस तरीके से ये प्रोडक्ट आप तक जल्दी से जल्दी पहुंचेगी और हमें उसका इस्तेमाल करना है और उसका फायदा उठाना है। एक नोवेल प्रोडक्ट है। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद दोस्तों, हमारे साथ जुड़े हुए रहने के लिए इतना देर तक, हम आपका आभारी है। अब आपका नीचे हुए दिए गए कमेंट सेक्शन पे आप आपका सुझाव, प्रश्न आप लिख सकते हैं और हम उस पर आपको जवाब देंगे। और धन्यवाद आप लोग हमारे साथ देने के लिए।